السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ نیوز اور میں ہوں بلال حیدر۔ سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائنز۔ رپورٹر کنول باجوہ کی رپورٹ کے مطابق ترنٹا محمد فلاح کے علاقہ کشی محمد خان میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ بچوں کی لڑائی سے تنگ یتیم 12 سالہ لڑکے نے خود کو آگ لگا دی۔ آگ لگنے سے بچے کا جسم جھلس گیا اور چہرہ بری طرح متاثر ہوا۔ متاثرہ بچہ تشویشناک حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ بچے نے لڑائی سے تنگ آ کر خود کو آگ لگا دی۔ دوستوں کے ساتھ جھگڑا ہوا تو دل برداشتہ ہو کر بچے نے خود کو آگ لگا دی۔ متاثرہ بچے کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں سے اسے برن یونٹ منتقال ریفر کیا گیا۔ متاثرہ بچے کی شناخت 12 سالہ محمد مبین کے نام سے ہوئی۔ فیروز فاطمہ میزبان میاں سیف علی، میاں عبدالجبار، میاں طارق جاوید، میاں اشفاق کی طرف سے اپنے خلوص و پیار کا اظہار کرتے ہوئے دوست احباب کی خدمت میں افطار ڈنر کا اہتمام۔ جناب میاں سیف علی کی طرف سے ماہ سیام میں گرینڈ اقبال میں اہتمام کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، جس میں پیر سید شہزاد ظفر شاہ، پیر سید حسنین فرید صابری، چودھری محسن اقبال بگڑ اور سابقہ وائس چیئرمین چودھری وقاص محمود مان اور 142 پی پی ایم پی اے حافظ فاروق احمد عطاری نے شرکت کی، اور اس کے علاوہ قاصر جاوید کرل، محمد عثمان مغل، چودھری نیاز احمد نیازی اور دیگر نے شرکت کی۔ جامچورو میں بدامنی عروج پر ہے۔ M9 موٹر وے اور سپر ہائی وے پر ڈاکو راج قائم، پولیس میں بس نظر آتی ہے۔ مولا بخش جمالی کی رپورٹ کے مطابق جامچورو ضلع میں بدامنی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ M9 موٹر وے اور سپر ہائی وے پر ڈاکو کا راج قائم ہے، جبکہ پولیس میں بس نظر آ رہی ہے۔ تازہ ترین واقعے میں روٹی کوٹ تھانہ کی حدود میں 35 میل پالاری ٹاور کے قریب مسلح ڈاکو نے ایک مزدور ڈرائیور کو اسلحہ کے زور پر شرخمال بنا کر 80,000 روپے لوٹ لیے اور مزاحمت کرنے پر گولی مار کر قتل کر دیا۔ واردات کے بعد ڈاکو بآسانی فرار ہو گئے، جبکہ پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ گھوٹکی میں ڈاکو راج برقرار۔ گھوٹکی میں 2 دن قبل مرشد مہران پمپ کے پاس قومی شاہراہ پر مبینہ اسلحہ بردار افراد نے نوجوان صدرالدین گھوٹو سے موٹر سائیکل، موبائل فون، دیگر قیمتی سامان چھین کر فرار ہو گئے۔ گھوٹا برادری نے گھوٹکی اے سیکشن تھانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ درغازی خان معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان وفاقی وزیر حذیفہ رحمان کی درغازی خان میں دائمی امن کے حوالے سے کوششیں رنگ لے آئیں۔ شیخ برادری اور وڈانی برادری نے وفاقی وزیر حذیفہ رحمان پر باہمی اعتماد کرتے ہوئے ان سے ثالث بننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں فریقین کی جانب سے خلوص نیت پر مبنی اس ثالثی کی پیشکش کو وفاقی وزیر حذیفہ رحمان نے قبول کیا اور اس معاملے کے کو خوش اسلوبی سے جلد از جلد حل کرنے کے لیے لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ دسکا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نواحی موضع واہلے کا 17 سالہ نوجوان عاصم اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ نامعلوم ملزمان کی فائرنگ کا نشانہ بن گیا۔ عاصم کو شدید مضروبی حالت میں سول ہاسپٹل منتقل کیا گیا، مگر وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ واقعہ کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس تھانہ صدر نے لاش سول ہاسپٹل منتقل کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شہر قائصر ڈسٹرکٹ سینٹر کے علاقہ نیو کراچی ٹاؤن سیکٹر 5J UC 5 میں قائم الخیر سیکنڈری بوائز اینڈ گرلز اسکول کی چاروں طرف گندا پانی، سیوریج کا پانی جمع ہے۔ اسکول کے اطراف کی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ اسکول کے سامنے بچوں کے کھیلنے کا گراؤنڈ تھا، جہاں مستقل پانی بھرا رہتا تھا، تاہم اسکول انتظامیہ نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں مٹی کے ڈمپر ڈلوا کر گراؤنڈ کو بچوں کے کھیلنے کے قابل بنایا۔ اس وقت وہاں موجود ہیں ہمارے چیف رپورٹر آپ نیوز کراچی ریاض زیدی۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی ریاض، آگاہ کیجیے گا۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں سیکٹر 5J نیو کراچی، اور نیو کراچی کا یہ ایریا ہے UC 5، اور UC 5 کا ایک بہت بڑا مقامی اسکول ہے یہاں پہ، الخیر سیکنڈری اسکول۔ میرے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہیں یہاں کے بورڈ آف کے ممبر۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہاں علاقے میں کیا پریشانی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام فہد آصف ہے، میں ادارہ الخیر آرگنائزیشن جو ہے اس کا ممبر بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ ہمارا اسکول ہے الخیر اسکول۔ اچھا، ہم لوگ پرائمری سیکنڈری اپ ٹو کالج ایجوکیشن دیتے ہیں، میٹرک تک کے تھے۔
अभी मैट्रिक के हमारे बच्चों ने अपियर किया था 56 बच्चों ने, जिसमें से 95% बच्चों का ए या ए प्लस ग्रेड है। तो बात ये एजुकेशन हम लोग क्वालिटी पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। 44 साल से हम लोग इस एरिया में हम लोग सर्विस कर रहे हैं। ये कैंपस शुरू होता है एक झोपड़ी से और 6 बच्चों से। आज माशाल्लाह 2250 बच्चे एट अ टाइम में यहाँ पढ़ते हैं, जिनमें कोई फ़र्क नहीं किया जाता। ना उनसे पूछा जाता है कौन सी ज़ात के, कौन सी ज़बान के, कौन सा रंग है, कौन सी नस्ल है। विदाउट एनी डिफरेंस, विदाउट एनी क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन, हम लोग सबको अकोमोडेट करते हैं। अच्छा, मैं स्कूल के सामने का जो बच्चों का जी। प्ले ग्राउंड है, जी। यहाँ बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था जी। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ मट्टी डलवा पिछले दी। 10-12 साल से आपको पता है कराची का पूरा सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम है। तो ये एक पब्लिक का ग्राउंड है सामने हमारे। तो यहाँ हमेशा ही समझे कचरा, गटर का पानी खड़ा रहता था। और जो यहाँ के रिहायशी वो मुझसे बेहतर जानते हैं बात कि उनके बच्चों को मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड वाइफाइड ये बड़ा नॉर्मल था। यहाँ हर बच्चे को कहीं ना कहीं होता ही है। तो हम अपने बच्चों को देखते थे, हमारे कम से कम 5% 10% छुट्टियां जो हो रही थी उन्हीं वजह से हो रही थी कि सैनिटेशन के नाकिस मामला की वजह अभी से। एप्लीकेशन दी, कोई शिकायत थी? सर एप्लीकेशन सब जगह दी, सब जगह दी एप्लीकेशन। यूसी तो अब एक्टिव हुई है पिछले 6 महीने 8 महीने से हम कह सकते हैं, वरना तो कोई एक्टिव था ही नहीं, या तो कुछ था ही नहीं, इनका कोई पूछने वाला नहीं था। अपनी मदद आप तहत बच्चों ने, पेरेंट्स ने, इदारे ने मिलके ये सारा किया। हमारे स्टाफ ने खुद खड़े होकर, हमारे एम्प्लॉयज़ ने, जो टीचर्स भी हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी हैं, अपने हाथों से झाड़ू वाड़ू लगा के खुद अपनी मदद आपके तहत खुद किया। मलबे वो तो आप लोग आए, आप लोगों ने हमें कॉन्फिडेंस दिया, आपने एक चीज़ को सराहा। मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का कि आपने एटलीस्ट कवरेज तो दी किसी, विदाउट एनी बेनिफिट, विदाउट एनी टेक अवे। तो मैं आप लोगों का और आपकी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ आए और आपसे सपोर्ट करते हो कि आप हमारी इसको चलाएं, दिखाएं लोगों को। ये इदारा 40 साल से सर्व कर रहे हैं कम्युनिटी को, और हम लोग माशाल्लाह 8 स्कूल मेडिकल सेंटर पे खड़े हैं आज। बहुत गंदगी होती थी, अब थोड़ा साफ हुआ है। बस आगे ये कि थोड़ा और साफ हो जाए, यहाँ थोड़ा ग्राउंड वगैरह से और बन जाए, पार्क की तरह से बन जाए जैसे ये। पहले बहुत गंदगी थी, अभी काफी हद तक साफ हो गया है ये। लेकिन ये है कि बस थोड़ा और साफ हो जाए तो बच्चों का माहौल बन जाएगा, स्कूल में आते हैं जाते हैं। कीचड़ घाप और बहुत ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है। तो जी। कचरा, इतना कचरा यहाँ से उठता नहीं है। कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं की यहाँ? बस किसी को शिकायत करें तो बस वो आगे नहीं होता, इतनी तवज्जो नहीं होती। हुकूमत पंजाब की हदायत पर ज़िली इंतज़ामिया ने मुमकिन सैलाब के पेश नज़र रेवेन्यू महकमा को भरपूर इंतजामात मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर ने ज़िली महकमों के इजलास की सदारत की और सैलाब से निपटने के लिए इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग ली। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर ने रेस्क्यू 112 सिविल डिफेंस समेत तमाम मुख्तलिफ इदारों को अपनी मशीनरी और आलात मुकम्मल फंक्शनल रखने का हुक्म दिया। शुजाबाद ट्रेन ने एक शख्स को हिट किया। शेरशाह के करीब 60 साल शख्स जाबक हो गया। शुजाबाद रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर बताया कि मौका पर मौजूद लोगों के मुताबिक लोगों ने गुजरते हुए डेड बॉडी देखी। ट्रेन ड्राइवर ने रेलवे पुलिस को कॉल करके बताया कि शेरशाह के करीब एक शख्स ट्रेन के साथ हिट हुआ है। पुलिस सारी रात डेड बॉडी तलाश करती रही, लेकिन इन्हें डेड बॉडी नहीं मिली। सुबह लोगों ने डेड बॉडी देखकर पुलिस को इत्तला की। पंजाब भर में मोटरसाइकिलिस्ट के महफूज सफर का मिशन। बगैर हेलमेट, इंडिकेटर, गैर मुनासिब लाइट्स और बगैर साइड व्यू मिरर मोटरसाइकिलिस्ट के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग की हदायत पर खुसूसी रोड सेफ्टी मुहिम जारी है। आजाद की रोकथाम और कीमती जानों की हिफाजत के लिए मोटरसाइकिल पर साइड व्यू मिरर और इंडिकेटर का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। पीटीओ मुल्तान सरदार मोहसिन खान की ज़ेर निगरानी खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई के साथ साथ सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानब से आगाही मुहिम भी जारी है। शहर भर में ट्रैफिक और कवानीन की पासदारी करवाने के लिए आगाही बोर्ड्स और बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए। माह रमजान मुबारक के दूसरे इशरे में महंगाई के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी के हुक्म पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयाँ जारी। जिला भर में 9000 से जायद इंस्पेक्शन और 31 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत एक रोज में 1,73,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने ग्राम फरोशी और ज़िक्र अंदोजों पर 5 मुकदमात दर्ज करके 20 दुकानें सरबा मोहर की। ईद उल फितर तक ग्राम फरोशों के खिलाफ एक्शन का सिलसिला जारी रहेगा। सहूलत रमजान बाजार समेत शहर में सस्ती चीनी की बिलातातुल फ्राहमी यकीनी बनाई जा रही है। सूरत चविंटा फाटक के करीब खातून और 3 साल बच्चा ट्रेन की जद में आ गए। 40 साल नामालूम खातून मौका पर चौमक हो गई, जबकि 3 साल अब्दुल्ला शदीद जख्मी हुआ। रेस्क्यू 112 ने जावा खातून की लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जबकि 3 साल अब्दुल्ला को रेस्क्यू 112 ने तिबी इमदाद के बाद हॉस्पिटल
मुंतकिल किया गया। फिलहाल हादसा की वजह मालूम नहीं हो सकी। सीपी मुल्तान सादिक अली डोगर की जानब से कुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां पर साइलिन ने पुलिस के शिकायत के अंबार लगा दिए। सीपी मुल्तान ने शिकायत के हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। ज्यादती केस में सुलह के लिए जोर देने पर थाना राजाराम सब इंस्पेक्टर खादिम की इंक्वायरी का हुक्म दिया। शुजाबाद SDPO सादिक अली डोगर ने कुली कचहरी से पहले पुरानी थाना सिटी की इमारत का भी विजिट किया और तामीराती काम का भी मुआयना किया। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की थाना सिटी में कुली कचहरी। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने शहरियों के मसाइल सुने। शहरियों ने CPO को देखकर अपने मसाइल और शिकायत के अंबार लगा दिए। थाना राजाराम के सब इंस्पेक्टर खादम गुज्जर की सरजनश की और इंक्वायरी का भी हुक्म दिया। रमजान मुबारक में वारदात को कंट्रोल करने के लिए मजीद नफी तैनात करने का वादा किया। तमाम शहरियों के जल्द से जल्द मसाइल मेरिट पर हल करने का हुक्म दिया। साहिवाल इंटरनेशनल अस्पताल के वफद और मेजर अटॉर्नी डॉक्टर मजहर हुसैन शराजी की रीजनल पुलिस ऑफिस साहिवाल आमद ADIG मोहम्मद अहमद रजा ने फूलों के साथ वफद का इस्तकबाल किया। वफद ने कमेटी मेंबरान के हमरा RPO और साहिवाल महबूब रशीद से बाहमी ताउन के हवाले से मुलाकात की। रीजनल पुलिस ऑफिस की मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा किया। वफद ने RPO ऑफिस में कायम स्टेट ऑफ द आर्ट्स E-लाइब्रेरी और रीजनल ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया, जहाँ इनको रीजनल सतह पर जदीद पॉलिसिंग के हवाले से पुलिस को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में बताया गया। वफद ने रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में जारी तरबीती कोर्स के शुरा से खिताब भी किया और जदीद पॉलिसिंग के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया।